Hello everyone, welcome to Open Sky Public School, Kanti, Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar, pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone and welcome to this video. Today we are going to discuss the 6th lecture of the chapter Heat of class 7th. In all the previous lecture, we had read about introduction and definition of heat, difference between hot and cold, about temperature, measuring temperature, kinds of thermometer, laboratory and clinical thermometer, reading a thermometer, transfer of heat, conductor and insulators of heat, conduction, convection and radiation. So, in today's lecture, we are going to discuss about convection and radiations. तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये सारा कुछ देख लिया था, जिसमें डेफिनेशन ऑफ हीट भी देखा था. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from hotter body to a colder body. That flow of energy is basically known as heat transfer. We had also read about how to distinguish between a cold body and a hot body, about temperature, about thermometers, laboratory and clinical thermometers, how to read the thermometers. Then after we had discussed about transfer of heat, conductors and insulators of heat. So today's lecture we are going to learn about convection and radiations. So moving forward, let's have some revision of the previous lecture. So in previous lecture we had read about the transfer of heat. There were three methods of transfer of heat. Those methods are conduction, convection and radiations, right? And we had read something about conduction, that the mode of transfer of heat from a hotter part of a body to its colder part, or from a hot object to a cold object when in contact with each other without the movement of the whole material, is called conduction. Conduction is the transfer of heat due to collision of its particles without actual movement of the particles from their position. Heat transfer through conduction occurs within solids and between solid substance that are in direct contact with each other. So in previous lecture, so conduction क्या होता है? Conduction basically वो mode of transfer है जब कोई hotter body और colder body आपस में contact में होता है, तो उस समय जो हीट का ट्रांसफर होता है, जिस मेथड से हीट ट्रांसफर होता है, उसी मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं. और जो सॉलिड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन के थ्रू ही हीट ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. सो दे ट्रांसफर हीट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स वाया वाइब्रेशन. तो कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में होल मटेरियल का मूवमेंट नहीं होता, बस जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स अंदर में होते हैं, वो वाइब्रेट करके एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं वाया वाइब्रेशन. दे डू नॉट मूव, राइट? सो दैट मोड ऑफ ट्रांसफर इज नोन एज conduction. So let's move forward. The second type of transfer, or the second method of transfer, is known as convection. What is convection? So it is the mode of transfer of heat from the hotter part of a fluid, liquid or gas, to its colder parts by the movement of liquid itself is known as convection. तो convection क्या है? वैसा mode of transfer है heat energy का जिसमें hotter part से fluid colder part की ओर move करता है. ठीक है. कंडक्शन में क्या हो रहा था? उस पूरे मटेरियल का मूवमेंट नहीं हो रहा था, बस पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस के द्वारा हीट ट्रांसफर हो रहा था. लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है? देयर इज द मूवमेंट ऑफ होल फ्लूइड. जो गैस होते हैं या फिर जो लिक्विड होते हैं, वो कोल्डर पार्ट से हॉटर पार्ट की ओर टोटली मूव करते हैं, और इसी मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन. ठीक है. तो यहाँ तक क्लियर है. फिर नेक्स्ट क्या है? द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस because the particles in solids are fixed at a place and hence cannot move freely. जो solids होते हैं, तो solids के जो molecules होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में फिक्स होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं. तो इसलिए क्या होता है? उसमें होल मटेरियल का फ्लो नहीं हो पाता है. लेकिन जो लिक्विड और गैसेज होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और वो फिक्स नहीं होते. इसलिए जैसे ही वो हीट होंगे, गर्म होंगे, तो क्या होगा? उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. इसलिए जो कन्वेक्शन होता है वो सिर्फ फ्लूइड्स में ही दिखाया जाता है, यानी लिक्विड और गैसेस में ही दिखाया जाता है. ये सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं है. ठीक है. यहाँ पे ये फिगर आप लोगों को दिख रहा. इस फिगर में क्या हो रहा है? जब नीचे से उसको हीट करते हैं हम फ्लूइड को, तो उसमें क्या होता है? जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं. दे हीट्स अप एंड हेंस देयर टेम्परेचर राइजेस. So when the temperature rises of the lower part of molecules, they move to the colder one and the colder molecules again move to the lighter one. जैसे ही कोई molecules का temperature rise करता है तो वो molecules lighter हो जाता है. जो fluid होता है उसका temperature जब rise होता है तो वो molecules lighter हो जाता है. तो जो lighter molecules होते हैं वो ऊपर की ओर move करते हैं, यानी जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसका टेम्परेचर राइज होता है वो लाइटर हो जाते हैं और वो ऊपर की ओर मूव करते हैं. और जो ऊपर में कोल्डर मॉलिक्यूल्स थे वो इनसे ज़्यादा हेवी होते हैं. और हेवी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? जैसे ही यहाँ पे जगह खाली हुआ तो हेवी मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? ऊपर से फिर नीचे आ जाएगा.
जैसे ही ये फिर ऊपर से नीचे आएगा तो जो पहले कोल्डर था वो नीचे आते ही उसको हीट मिलेगा और फिर से वो लाइटर हो जाएगा और फिर से वो ऊपर की ओर मूव करेगा। फिर जब ऊपर मूव करेगा तो और ऊपर बचा हुआ जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स था वो भी अब नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये मूवमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। इस वाले फिगर में दिख रहा है आपको, ये मूवमेंट कंटिन्यू चलता रहता है और इसी मूवमेंट के कारण क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड होता है वो टोटली हीटअप हो जाता है। तो पानी गर्म कैसे होता है ये समझ में आ गया, ड्यू टू द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जो सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उस वो हीट मिलते ही उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है और वो पहले से लाइटर हो जाते हैं। जैसे ही वो लाइटर होते हैं तो वो ऊपर की ओर मूव करने लगते हैं और जो ऊपर वाले कोल्डर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ही नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव करेंगे तो यहाँ जो जगह रहेगा, यहाँ जो प्लेस होगा, दैट बिकम्स वैकेंट and this vacant place is covered by the colder molecules of the upper part, right? So this cycle remains continued all the time till the whole fluid gets heated. Got the point? So moving forward, there are some practical application of conductions. The first application is exhaust fan in kitchens are always fitted high close to the ceiling so that they can remove the hot air that rises up. हमारे घर में क्या होता, जो सरफेस पे जो एयर्स रहते हैं वो अगर किसी कारण से गर्म हो जाते हैं तो ऊपर किचन्स में, जैसे ही किचन में गैस जलेगा तो वहाँ के आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। जैसे ही उनका टेम्परेचर राइज करेगा, दैट एयर मॉलिक्यूल्स बिकम लाइटर एंड वी ऑल नो दैट द लाइटर मॉलिक्यूल्स मूव अपवर्ड। जैसे ही लाइटर हो जाएगा तो वो ऊपर की ओर मूव करेगा और जो ऊपर में कोल्डर मॉलिक्यूल्स थे वो वापस से नीचे की ओर मूव करेंगे। तो जो हॉटर एयर रहता है, जो हॉट एयर रहता है वो ऊपर की ओर मूव करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, घर के ऊपर में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं अपर में, ऊपर में, ताकि जो मॉलिक्यूल्स, जो एयर मॉलिक्यूल्स नीचे से गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं वो इस एग्जॉस्ट फैन के द्वारा हमारे किचन से बाहर निकल जाए एंड वी फील colder. Got the point that while exhaust fans are fitted high in the kitchens, right? So the next application is room heaters are placed on the floor of a room. When the cool air is heated, it rises up and the cold air flows down to the floor. This results in effective heating of the entire room. फिर क्या है, जो रूम हीटर्स होते हैं उन रूम हीटर्स को हम लोग फ्लोर पर रखते हैं, यानी ज़मीन पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे ज़मीन पे कूल एयर्स है, जो कोल्डर एयर है, वो क्या करता है, हीटअप होता है और फिर से वो ऊपर की ओर राइज करता है। ठीक है, ये बार बार कह रहे हैं, जिस एयर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज करता है वो पहले से लाइटर हो जाता है एंड लाइटर मॉलिक्यूल्स मूव अपवर्ड। जैसे ही वो अपवर्ड मूव करेगा तो नीचे वाला जगह खाली हो जाएगा और वो नीचे वाला जगह क्या कर लेगा, ऊपर में जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स थे वो फिर आके यहाँ वाला जगह कवर कर लेंगे और फिर से जो नीचे हीटर लगा हुआ है वो इन मॉलिक्यूल्स को भी हीटअप कर देगा और फिर से वो ऊपर राइज कर देंगे। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल एंटायर रूम बिकम्स हॉट। Got the point that why room heaters are kept on the floor of a room, right? So the next example is the ventilators of a room at the top of a window or the door. This is because when the air in the room gets heated, it rises and passes out from the ventilators at the top. The same condition is applied here too, that the ventilators are made at the top of the room because when the room gets heated, the air molecules near the floor becomes heated and it rises up of the room towards the ceiling, and the colder molecules of the ceiling again move to the vacant place near the floor, and this process continues till hotter molecules goes up, it passes from the ventilators of the room and thus the room becomes cold, right? So these were some practical applications of convection in our daily life. It is not conduction, it's convection, practical application of convection, right? Understand? Everything is clear? So moving forward, our next topic is convection in waters. Waters transfer by the method of convection because water is a poor conductor of heat, so it cannot transfer heat via conduction. That why water transfer heat via convection. तो जो water होता है ये क्या होता है, बहुत ही poor conductor of heat होता है। ठीक है, और ये भी होता है कि जो उसके molecules होते हैं वो fix नहीं होते। ठीक है, तो जैसे ही water heat up होता है उसके molecules अपने जगह से replace कर जाते हैं and the whole molecules or the whole materials flows, and this method is known as convection. So water transfer heat by the method of convection. और कोई भी मटेरियल कंडक्शन तभी शो करेगा जब वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। क्यों? क्योंकि जो मेथड होता है कंडक्शन का उसमें क्या होता है, किसी एक ही मटेरियल के हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर हीट का फ्लो होता है। अगर वो गुड कंडक्टर नहीं होगा तो वो हीट का फ्लो नहीं होने देगा और हॉटर पार्ट से फिर कोल्डर पार्ट तक हीट का फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और चूंकि वाटर क्या होता है, इट्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कंडक्शन इन that case.
So water transfers heat by the method of convection, right? Understand? So moving forward, the next topic is convection in airs. Airs also transfers heat by the method of convection because air is a very poor conductor of heat, so it can't transfer heat via conduction. That's why air transfer heat via convection. The same condition is also applied here, that air is also a very poor conductor of heat, so it can't transfer heat by the method of conduction because conduction is only shown by the good conductors of heat. So air also transfer heat by the method of convection. The next topic is sea breeze and land breeze. Sea breeze and land breeze in coastal areas generally occurs due to convection of heat in air. ठीक है, तो जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता है, इसका नाम पहले ही आप लोग शायद सुने होंगे, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज. तो ये बेसिकली कोस्टल एरियाज में होता है. कोस्टल एरियाज आर दोज एरियाज एट द बैंक ऑफ द सी और अ रिवर. दोज एरियाज आर नोन एज कोस्टल एरियाज. So it is generally occurs on coastal areas due to the convection of air in the atmosphere. ठीक है, तो जो एयर होता है वो चूंकि हीटअप हो जाता है सन रेज के कारण, तो उस एयर के कन्वेक्शन के कारण कोस्टल एरियाज में हमें सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दिखते हैं. राइट, वी एक्सपीरियंस सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. The next is during daytime the breeze generally flows from the sea towards the land, and during the night it flows from the land towards the sea. So डे टाइम में जो ब्रीज होते हैं वो जनरली सी से लैंड की ओर मूव करते हैं, और ड्यूरिंग द राइट टाइम द सेम ब्रीजेस फ्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी. हाउ दिस सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज फिनोमेना टेक्स प्लेस, लेट्स डिस्कस फॉरवर्ड. ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप more than the water, and thus the air over the land surface become hotter and lighter and rises up. जब दिन होता है तो उस समय क्या होता है, लैंड हीट अप हो जाता है. राइट, ड्यू टू द रेज ऑफ सन द लैंड हीट्स अप and the air over the surface of the lands become hotter, right? And we all know that the hotter air molecules are lighter than the colder one, and since lighter molecules move upward, so the lighter air molecules rises up above the surface, right? So the air from the sea, which is cooler and heavier, rushes to take the place created by the hot air rising. Therefore a sea breeze flow during the day. जब ये राइज अप कर जाते हैं, जब नीचे वाले एयर जो सरफेस के पास होते हैं एयर, वो एयर जब राइज अप कर जाते हैं तो उस जगह जो होता है वो वैकेंट हो जाता है, एंड दैट वैकेंट प्लेस इज कवर्ड बाय द कोल्डर एयर्स. कोल्डर एयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिर ऊपर से नीचे की ओर मूव अप करते हैं एंड रशेस टू टेक द प्लेस क्रिएटेड बाय द हॉट राइजिंग एयर. देयरफॉर दैट ब्रीज, दैट एयर फ्लो, दैट ब्रीज इज नोन एज sea breeze, and it takes during the day. Let's see a figure. In this figure here, can you see the figure? These are the coastal areas. When the sun rays fall on the surface of earth, the air toward the surface of earth become hotter, and hotter airs rises up, right? The warm air rises up. यहाँ सबको दिख रहा, जो warm air है, जो गर्म हवा है, वो क्या हो रहा, ऊपर की ओर राइज कर रहा. ठीक है, और जो गर्म हवा होता है वो लाइटर हो जाता है, तो ये क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है. जैसे ही ये अपवर्ड मूव करेगा तो ये वाला जगह हो गया, अब वो वैकेंट हो गया. राइट, तो यहाँ पे जो जगह था वो अब क्या हो गया, वो अब वैकेंट हो गया, खाली हो गया. तो इधर से क्या होगा, जो कोल्डर एयर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इधर की ओर मूव करेंगे. अब क्वेश्चन क्या आता है कि भैया जो रेज है, जो सन रेज है, वो क्या होता है, वो लैंड पर भी गिरता है एंड इक्वली इट फॉल्स ऑन द सी टू. बट हाउ द एयर अराउंड द सी does not become hotter? तो इसका कारण ये है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी वाटर वेपर में तभी चेंज करेगा जब इसका टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस होगा. तो वाटर का वेपर बनने के लिए या फिर वाटर के आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको गर्म होने के लिए दे नीड अ लॉट ऑफ टेम्परेचर. दस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम to make that temperature rise, but instead of that matter the air around the land becomes hotter earlier and easier. तो जो लैंड के आसपास के एयर होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जैसे ही ये गर्म होते हैं ये ऊपर की ओर मूव करते हैं और ये जगह वैकेंट हो जाता है. और चूंकि अभी सी के आसपास वाला जो एयर मॉलिक्यूल्स है, जो एटमॉस्फेयर है, वो ठंडा है, और जो ठंडा एयर होता है वो क्या होता, हेवियर होता है. तो ये हेवियर एयर क्या करेंगे, वापस से ये अब लैंड की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो हेवियर मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स द लैंड, और ये वैकेंट जगह को वापस से ये कोल्डर एयर ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ का जो गर्म हवा था वो ऊपर चला गया और जो ठंडा हवा था वो यहाँ आ गया. तो अगेन द एटमॉस्फेयर नियर द लैंड सरफेस बिकम कूलर. सो द ब्रीज दैट फ्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड, दिस ब्रीज इज नोन एज सी ब्रीज. गॉट द पॉइंट?
Everything is clear? So the next one is, during the day, land loses the heat faster than water and becomes cooler, and the air over the sea is now warmer, due to which it rises up and the cooler air over the land rushes to take its place. Therefore we observe land breeze at night. Sorry, यहाँ पे day नहीं, यहाँ पे night होगा. During the night. During the night, land loses heat faster than water. ठीक है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स को गर्म होने में ज़्यादा समय लगा, वैसे ही उसके मॉलिक्यूल्स जब गर्म हो जाएंगे तो उसको वापस से टेम्परेचर डाउन करने में यानी ठंडा होने में उतना ही वक्त लगेगा. तो इसका जो कूलिंग का प्रोसेस होता है वो भी बहुत लंबा होता है, यानी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिकम कूलर अगेन इन कंपैरिजन टू लैंड. सो रात में क्या होता, जब ये लैंड के जो एयर होते हैं, जो लैंड के सरफेस के आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जल्दी से अपना हीट लूज कर जाते हैं एंड इट बिकम्स कूलर. वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी जो सी के आसपास के एयर होते हैं वो अभी तक ठंडे नहीं होते हैं. इट इज हॉटर एंड अगेन द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड बाय द सी. द एयर ओवर द सी इज नाउ वार्मर ड्यू टू विच इट राइजेस अप एंड द कूलर एयर ओवर द लैंड रशेस टू टेक इट्स प्लेस. देयरफॉर वी ऑब्जर्व लैंड ब्रीज. अब क्या है, चूंकि वाटर के आसपास के एयर हॉटर है तो वो क्या करेंगे, ऊपर की ओर राइज करेंगे और वो वाला जगह अब वैकेंट हो जाएगा. और जो लैंड के सरफेस के आसपास वाले एयर्स होते हैं वो जब अपना हीट लूज करके कूलर हो जाते हैं और हेवियर हो जाते हैं. तो जैसे ही इधर वाले एयर ऊपर जाएंगे तो जो कूलर एयर है वो इसका जगह आके ले लेगा. ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसके आसपास भी कूल हो गया और यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज. तो आइए इसको समझते हैं. इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले फिगर में क्या हो रहा, चूंकि अभी सी के आसपास के जो एयर है वो क्या है, हॉटर है. यहाँ के एयर हॉटर है तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर राइज करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा कंटिन्यू. तो अब जो ये ऊपर राइज करेगा तो ये वाला जगह जो है वो क्या हो गया, वैकेंट हो गया. ठीक है, लेकिन जो लैंड के आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना हीट लूज कर लेते हैं और दे बिकम्स कूलर. तो ये जो जगह वैकेंट है अब क्या करेगा, जो ये कोल्डर मॉलिक्यूल्स है ये रश करेगा ये वाला वैकेंट जगह लेने के लिए. ठीक है, तो अब क्या है, इधर के मॉलिक्यूल्स जो लैंड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अब सी की ओर मूव करेंगे और जो वार्म एयर है वो ऊपर की ओर मूव करेगा. तो इसी फ्लो ऑफ ब्रीज को हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज. क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज. तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज समझ में आ गया, पक्का, फाइन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रेडिएशंस. टिल देन, थैंक्स एंड गुड लक.